Hello everyone, my name is Priya from CA Sansar. A warm welcome to all of you at our YouTube channel CA Sansar. We are come here with new video on new topic which is tax on income from share market. For this discussion, we are heartily welcome to CA IP Vivek Khurana sir. Thank you sir for your valuable time. Before Vivek sir started, I want to request to all of you, please subscribe our YouTube channel and like the video and press the bell icon. So Vivek sir, can you please guide us on the topic of tax on income from share market? Thank you very much, Priyaji, for such a warm welcome, and my sincere thanks to Team CS Sansar for giving me once again opportunity on your platform to discuss on another very important topic, which is taxation on the income from the share market trading or the investment. So last year we had recorded a video on the tax audit applicability in case of share market income. It's whether it's from the future and options or from the regular share tradings. So today we will discuss about the what's the taxation, income tax on the income from share market trading or the investment. Let me show you through the PPT. Yes, now I think it's visible. Yeah. So tax on income from share market trading and investment and long-term capital gain, short-term capital gain, dividend taxation. Before that, one disclaimer is there. All these are my personal views and can't be construed to the views of the any other person or any other authority. And please don't take it any legal advice or the professional advice or the legal opinion or the professional opinion. And the purpose of this video is just to spread knowledge, information, awareness, and shall not be treated as solicitation in any manner or for any other purpose whatsoever. And my request to all of you, please also check the Income Tax Act, income tax rules, notification, circular. So today we will discuss, means in this video and might be in our next video, we'll discuss on these topics like the taxation on trading of shares, equity shares. It can be listed equity shares or the unlisted equity shares. We will also discuss about the taxation on the mutual fund, debt oriented mutual fund or the equity oriented mutual fund. Then we will also discuss about the bonds and debentures. It can be listed bonds and debenture, unlisted bonds and debentures, then zero coupon bonds. Then we'll also discuss about the dividends. So taxation on the trading of shares in case of listed equity shares. So this is very important कि when you are investing into the share market, कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, देन यू हैव टू सी कि आप एंटर कर रहे हो एज ए इन्वेस्टर या फिर एज ए ट्रेडर, कि आप कैसे आप उसमें एंटर कर रहे हो शेयर मार्केट में. तो इन्वेस्टर मीन्स कि अगर आपने कोई शेयर परचेज करे, आज शेयर परचेज करे, देन यू सेल इट आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर्स, या फिर आपने 6 मंथ बाद, या फिर आपने कोई और फिर परचेज कर लिया आफ्टर 3 मंथ्स. मीन्स आप एंटर कर रहे हो एज ए इन्वेस्टर और उसको आप एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर रहे हो, आप जो शेयर्स आप परचेज कर रहे हो शेयर स्टॉक वगैरह को. और जो अनदर थिंग इज इफ यू आर एंटरिंग इनटू द शेयर मार्केट एज ए ट्रेडर, कि मीन्स आप कह रहे हो नहीं मेरा तो यही बिजनेस है, मेरे को तो डेली जाके टर्मिनल के सामने बैठना है, सेल परचेज करने हैं या फोन पे रेगुलरली, कभी सेल कभी परचेज रेगुलरली, तो देन दैट्स योर बिजनेस इनकम. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसी के ऊपर ही बहुत ज्यादा लिटिगेशंस हैं कि एसएससी कहता है नहीं इट्स माय इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है नो इट्स योर बिजनेस इनकम. मींस डिपार्टमेंट वांट्स मोर एंड मोर टैक्स, तो एसएससी वांट्स लेस टैक्स. तो वो चाहता है कि मैं जितने से ज्यादा कम से कम टैक्स दूं, चाहे मैं उसको कैपिटल गेन दिखाऊं या फिर बिजनेस इनकम दिखाऊं. सो दैट्स द कंफ्यूजन. सो इसके ऊपर भी सीबीडीटी ने भी सर्कुलर इशू किया था कि एसएससी हैव टू ओप्ट, कि अगर उसको ओप्ट करना है कि जो उसके लिस्टेड शेयर्स हैं वेदर इट्स स्टॉक इन ट्रेड, अगर वो उसको स्टॉक इन ट्रेड आप उसको ओप्ट करते हैं तो देन इट्स योर बिजनेस इनकम. और अगर उसको आप ऑप्ट करते हो नो इट्स नॉट माय स्टॉक इन ट्रेड इट्स माय इन्वेस्टमेंट, तो इसको आप ऑप्ट करोगे एज ए कैपिटल गेन. बट
रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आपके एक और सर्कुलर आया था सीबीडीटी कि अगर 12 मंथ से ज्यादा अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हो देन इट्स द कैपिटल गेन, वो आपको कैपिटल गेन में ट्रीट होगी। और आपको बिफोर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न यू हैव टू शो कि जो आपके शेयर्स हैं आप उसको रेगुलर एज ए ट्रेडिंग यूज करते हो, स्टॉक इन ट्रेड में आप अपने उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहे हो, तो देन इट्स पार्ट ऑफ योर स्टॉक इन ट्रेड, देन इट्स योर बिजनेस इनकम। तो इसके ऊपर पूरा हम डिस्कस करेंगे, ये मैंने सिर्फ आपको सिर्फ जस्ट एक डिस्कशन दी है। तो अगर आप उसको एज ए इन्वेस्टर दिखा रहे हो तो देन इट्स योर कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में कैसे टैक्स लगेगा, व्हाट्स योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या व्हाट्स योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप कहते हो नो आई एम द ट्रेडर, ये मेरी बिजनेस इनकम है, तो बिजनेस इनकम में हम देखेंगे कैसे टैक्सेशन होगा, वेदर इट्स योर स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम या नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, दैट आल्सो वी विल डिस्कस। तो एंड देन जो आप शेयर्स वगैरह परचेज करो लिस्टेड शेयर्स में भी, उसमें भी टू टाइप्स हैं। जैसे आप कह रहे हो कि आई एम डूइंग ट्रेडिंग या आई एम डूइंग इन्वेस्टिंग, तो उसमें इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली बात है आप एज ए डिलीवरी बेस्ड करोगे। बट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इंट्राडे भी कर सकते हो या फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी कर सकते हो, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। एंड डिलीवरी बेस्ड में भी इट कैन बी आपकी जो रेगुलर ट्रांजेक्शन हो रही हैं या कैजुअल ट्रांजेक्शन हो रही हैं, उसमें क्या डिफरेंस है कि रेगुलर ट्रांजेक्शन मीन्स आज अपने परचेज करे, आफ्टर 1 वीक सेल कर दे, या फिर आज परचेज किए कल फिर परचेज कर दिए, नेक्स्ट डे फिर सेल कर दिए, फिर मीन्स रेगुलरली यू आर डूइंग दैट थिंग। तो उस केस में क्या टैक्सेशन है। या फिर कैजुअल कि कभी कभार आपने कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर दी कि ठीक है आज वो उसके रिलायंस की शेयर ले ले या कभी किसके शेयर ले ले, तो दैट्स द कैजुअल ट्रांजेक्शन। तो उसके ऊपर क्या टैक्सेशन है दैट वी विल सी। तो another thing you are an investor or you are a trader, that's also I told you lots of litigations are there। इसके ऊपर भी it depends कि वो आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, मींस जो आपकी शेयर्स की इनकम है, whether it's a business income या whether it's a capital gain, it depends ऑन दैट फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंसेस। कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यस उठा के आपने बिजनेस इनकम ट्रेड कर दिया, उठा के आपने कैपिटल गेन ट्रेड कर दिया, नो। इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस एंड also consideration you have to check regarding the nature of the transaction कि क्या nature क्या है, then frequency of the transaction, then volume of the transaction, ये together it can be checked कि you are a investor or you are a trader। तो उसके अलावा ये सीबीडीटी सर्कुलर मैं आपको बता चुका हूँ। सो ट्रेडिंग में शेयर ट्रेडिंग आई टोल्ड यू इट कैन बी आपने शेयर ट्रेड किया कि आज लिया आज ही सेल कर दिया, तो दैट्स ए नॉन डिलीवरी बेस्ड। या फिर डिलीवरी बेस्ड आपने उसकी शेयर्स की डिलीवरी ले ली एंड आफ्टर दैट यू सोल्ड इट, तो उसमें आपकी कैपिटल गेन होगा, वेदर इट्स ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले भी कि इफ यू आर ए रेगुलर ट्रेडर मीन्स अगर आपकी रेगुलर ट्रांजेक्शन है या फिर कैजुअल ट्रांजेक्शन है जो पीछे हमने डिस्कस किया था, तो रेगुलर ट्रांजेक्शन मीन्स यू आर ए ट्रेडर, कैजुअल ट्रांजेक्शन मीन्स यू आर ए इन्वेस्टर। तो रेगुलर ट्रांजेक्शन जो अगर आप कर रहे हो तो दैट्स योर बिजनेस इनकम, और अगर आप कैजुअल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो इट मीन्स इट्स द कैपिटल गेन। और जो नॉन डिलीवरी बेस्ड है इसको हम पूरा डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंट्राडे कर रहे हो तो आपके ऊपर स्पेकुलेटिव इनकम जो बिजनेस इनकम है उसके ऊपर कैसे टैक्स लगेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन के केसेस में जो आपकी बिजनेस इनकम है उसको कैसे टैक्स लगेगा, कैसे आप एक दूसरे से सेटअप कर सकते हैं नहीं कर सकते, स्पेकुलेटिव को नॉन स्पेकुलेटिव से, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वो तो आज ही हम डिस्कस करेंगे। बट जो नॉन डिलीवरी बेस्ड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज योर शेयर ट्रेडिंग जो आपकी डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन है, रेगुलर ट्रांजेक्शन। रेगुलर ट्रांजेक्शन मीन्स यू आर एज ए ट्रेडर, आप उसको अपना स्टॉक में ट्रीट कर रहे हो। तो स्टॉक में ट्रीट कर रहे हो तो इन दिस केस दिस वुड बी योर बिजनेस इनकम। तो बिजनेस इनकम जो उसका नेट ऑफ है, आइदर इट्स ए सेल या परचेज, उसका जो नेट ऑफ देख के आप टोटल कैलकुलेट करेंगे, कभी आपको लॉस हुआ कभी परचेज हुआ, तो टोटल वेदर यू आर इनटू प्रॉफिट और यू आर इनटू लॉस। तो अगर इनकम है तो इनकम के ऊपर आपकी एडिड इनटू द बिजनेस इनकम, जैसे 5 हेड्स में तो बिजनेस इनकम में ऐड होके आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट होगी और स्लैब रेट जो है उसी के अकॉर्डिंगली आपके टैक्सेशन आपका अलाउड होगा। 44 AB में ऊपर हम टैक्स ऑडिट के टाइम डिस्कस करेंगे फर्दर कि कैसे उसको बिजनेस इनकम में आपने अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो कैसे आपने उसको ऐड करना है देखना है। देन अगर आपके कैजुअल ट्रांजेक्शंस है तो कैजुअल ट्रांजेक्शंस के अंदर कि मीन्स आपने उसको इन्वेस्टमेंट शो किया डिलीवरी बेस्ड को, मीन्स आज लिया कभी 6 मंथ बाद या 1 ईयर बाद उसको सेल कर दिया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कि अगर आपने सेल कर दिए जो आपके शेयर्स हैं, स्टॉक है, इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, विद इन 12 मंथ्स अगर आपने सेल कर दिए तो देन इट्स योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने 12 मंथ्स के बाद सेल कर रहे हैं तो दैट्स योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो उसकी कैसे आपने करना है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल कैसे करना है, सेल वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस माइनस जो परचेज प्राइस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। देन
कि अगर आपका कोई लॉस है, जैसे फॉर एग्जांपल इस साल मैंने कोई शेयर्स में ट्रेडिंग करी, तो मेरे पास कोई लॉस हो गया, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हो गया, तो वेदर आई कैन सेट ऑफ, उसको सेट ऑफ कर सकता हूँ या कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो यस, डेफिनेटली। बट अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको सेट ऑफ कर सकते हो सिर्फ लॉन्ग टर्म, आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उसको सेट ऑफ कर सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। और अगर आपका सेट ऑफ नहीं हो सकता तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो 8 ईयर्स तक, सब्जेक्ट टू जो आपका रूल्स है कि आपने आईटीआर फाइल करनी है उस डेट तक, वो जो है वो आपका सारा सारा। बट ये सेट ऑफ करना है कि किसी साल आपके लॉस है, आपने पीछे करा कि 2-3 साल से आपके लॉस आ रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, इस साल आपके प्रॉफिट हो गए, तो आप डेफिनेटली उसको सेट ऑफ कर सकते हो। क्लियर? देन रेट ऑफ टैक्स, जो टैक्सेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं डिलीवरी बेस में कैजुअल ट्रांजैक्शन के केसेस में, तो कैजुअल ट्रांजैक्शन में अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, जो पीछे हमने डिस्कस किया था, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स है दैट्स द 15%। तो 50 सब प्लस जो अदर एजुकेशन सेस वगैरह हैं, अगर सरचार्ज वगैरह भी है एज एप्लीकेबल, वो अलग से, बट जो रेट है दैट्स 15%। वो आपका 15% से आपका टैक्स लगेगा, वो ब्रैकेट वगैरह छोड़ देंगे, जो एग्जाम्पशन है वो भी कैलकुलेट कर लेंगे, बट 15% टैक्स है। एंड इन केस इट्स ए शो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, मतलब आपने 1 ईयर बाद सेल किया है और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, देन 10%, बट अबोव 1 लाख रुपीज। मीन्स अगर आपका 1.5 लाख कोई प्रॉफिट हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया किसी शेयर्स में, तो आपका 1 लाख एग्जाम्पशन मिल जाएगी 50,000। एंड 1 लाख इज टोटल 1 ईयर एक में है और सारे कंबाइंड में है, ईच शेयर्स में नहीं है। एंड दिस इज विदाउट इंडेक्सेशन, आपको कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, तो 1 लाख रुपीज की आपको एग्जाम्पशन कैपिटल गेन पे मिलेगी, तो 10% आपका टैक्स लगेगा। क्लियर? दिस इज फॉर द कैजुअल ट्रांजेक्शन। नाउ अब कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम किस आईटीआर में फाइल कर सकते हैं। तो आईटीआर तो अकॉर्डिंगली जो आपको पता है, नंबर वन सैलरी वगैरह वन में जो फाइल कर रहे हो उसमें नहीं शो करोगे, बट यस इफ यू आर इन्वेस्टर देन यू कैन शो इनटू द आईटीआर 2। खाली इन्वेस्टर है आप, अगर आपकी इट्स योर बिजनेस इनकम है तो सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन जो आईटीआर 2 की आप आईटीआर 2 में फाइल कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं आपको इन्वेस्टर भी हो ट्रेडर भी हो, तो आप आईटीआर 3 में भी दिखा सकते हो। देन अगर आपको लगता है कि मेरे को 44AD के भी वो लेना है, बेनिफिट लेना है 44AD जो है, तो आईटीआर 4 में आप शो कर सकते हो, बिकॉज यू कैन आल्सो क्लेम जो शेयर ट्रेडिंग इनकम है अंडर सेक्शन 44AD, उसमें भी आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में, तो यू कैन शो द आईटीआर 4। देन नाउ टैक्स ऑन द म्यूचुअल फंड। तो आई थिंक जो हमारा जो शेयर ट्रेडिंग था लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के ऊपर, नाउ इट्स क्लियर कि वेदर यू आर ए ट्रेडर और वेदर यू आर ए इन्वेस्टर। ट्रेडर हैं अगर आपकी रेगुलर ट्रांजेक्शन है तो बिजनेस है, और अगर कैजुअल है तो उसमें आपको देखना है कि वेदर इट्स ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दिस इज ऑल अबाउट द इक्विटी लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड शेयर जो आपके शेयर मार्केट में जो शेयर एक्सचेंज है वहां पे ट्रेड हो रहे हैं। देन जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं, या तो इक्विटी ओरिएंटेड या डेट ओरिएंटेड। इक्विटी ओरिएंटेड में तो सेम है आपका, जैसे हमने अभी उसके ऊपर डिस्कस किया जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, सेम टू सेम 15% आपका टैक्स है और उसके ऊपर 10% टैक्स है। वही लॉन्ग टर्म उसमें आपका सेट ऑफ कैसे कर सकते हो आपस में, और 8 ईयर तक कैलकुलेट कर सकते हो। देन डेट ओरिएंटेड में डिफरेंट है, इक्विटी ओरिएंटेड में तो 12 मंथ पीरियड है, बट डेट ओरिएंटेड में इट्स 36 मंथ। कि यार अगर विद इन 6 मंथ 36 मंथ सेल करते हो देन इट्स ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बट अगर आप अबोव 36 मंथ आफ्टर 36 मंथ करते हो देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, तो उस केस में जो आपके नॉर्मल स्लैब रेट्स हैं, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20% सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन, तो ये उस केस में है। देन नेक्स्ट इज अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अभी पीछे हमने डिस्कस किया था लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में। अब अगर हम अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में कुछ ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन के बेसिस में, कि अगर आपने विद इन 24 मंथ्स, वहां से 12 मंथ पीरियड था, यहाँ पे 24 मंथ्स का पीरियड है, विद इन 24 मंथ्स में पीरियड में सेल कर दिए तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आफ्टर 24 मंथ्स पीरियड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नॉर्मल जो आपके स्लैब रेट्स हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल में 20% सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन। देन हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, लिस्टेड अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में। तो दिस इज जो आपके लिस्टेड है वही सेम आपका लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की तरह आपका 12 मंथ्स का पीरियड है यहाँ पे, और यहाँ पे नॉर्मल स्लैब रेट्स है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10% विदाउट इंडेक्सेशन। ये है आपके लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स।
कि अगर आपने विद इन 12 मंथ सेल कर दिए तो इट्स ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आफ्टर 12 मंथ सेल करे तो इट्स ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और टैक्स रेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के उसमें केसेस में नॉर्मल या स्लैब रेट्स, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 10%, शॉर्ट टर्म में नॉर्मल स्लैब रेट और लॉन्ग टर्म में 10%, बट दिस इज विदाउट इंडेक्सेशन। देन हम डिस्कस करेंगे अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर के केसेस में। तो अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स है, तो उस केस में आपका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है दिस इज 36 मंथ्स। तो अगर आपने अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स विद इन 36 मंथ सेल कर दिए तो देन इट्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर आफ्टर 36 मंथ सेल कर रहे हैं तो इट्स ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और टैक्स रेट्स क्या होगा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केसेस में, इन केस ऑफ अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर तो आपका नॉर्मल स्लैब रेट्स होगा, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20% विदाउट इंडेक्सेशन। क्लियर? एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स, अगर जीरो कूपन बॉन्ड्स में इस केस में भी आपके लिस्टेड की तरह पीरियड ऑफ होल्डिंग ले रहे हैं, 12 मंथ्स का है आपका, विद इन 12 मंथ सेल कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आफ्टर 12 मंथ सेल कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और टैक्स रेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में टैक्स रेट जो है आपका नॉर्मल स्लैब रेट, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसमें है लोअर ऑफ 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन। गवर्नमेंट ने कहा कि आप इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट ले सकते हो, बट अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लोगे तो 20% लगेगा, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लोगे तो 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। एंड देन नेक्स्ट जो है जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे नॉन डिलीवरी बेस्ड। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्राडे के केसेस में क्या that's our speculative income, that's the part of business income। फ्यूचर एंड ऑप्शन दैट्स अवर बिजनेस इनकम, बट वो स्पेकुलेटिव नहीं है। फिर स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव हम सेटअप कर सकते हैं नहीं कर सकते, दैट ऑल वी विल डिस्कस। बट रिकैप मैं फिर आपको बता रहा हूँ जो भी हम मेजर, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो कम लोग ही करते हैं, बट शेयर मार्केट में ऑलमोस्ट एवरी पर्सन आर डूइंग इनटू द ट्रेडिंग इनटू द शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट के जो भी हमने इक्विटी लिस्टेड शेयर्स के ऊपर डिस्कस किए, रेगुलर ट्रांजेक्शन है आपकी तो बिजनेस इनकम है आपकी। बिजनेस इनकम का क्या होगा, जो भी आपको टोटल जो आपका नेट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा दैट्स द पार्ट ऑफ योर बिजनेस इनकम। पीजीडीपी में टैक्सेबल होगी, नॉर्मल टैक्स रेट्स आपके लगेंगे जो भी स्लैब रेट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचएफ जो भी है। एंड कैजुअल ट्रांजेक्शंस के केसेस में अब कभी कभी आप कैजुअल ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं तो उस केस में, या मतलब इन्वेस्टर है तो उस केस में आपका जो कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। इक्विटी शेयर लिस्टिंग केस में 12 मंथ्स का पीरियड है, विद इन 12 मंथ सेल कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अब वो 12 मंथ सेल कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अकॉर्डिंगली आपका जो टैक्सेस है वो 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर और लॉन्ग टर्म के ऊपर 10% हो गया, वो आपका टैक्स एप्लीकेबल होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। अगेन आई एम सेइंग दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, जो हमारा जो टॉपिक था आज, इनकम फ्रॉम द शेयर ट्रेडिंग जो एक्टिविटीज है, शेयर ट्रेडिंग या द शेयर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। तो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। इन आवर नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द जो हमारा इंटरडे है या फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, उसके ऊपर जो हमारी इनकम हो रही है उसके ऊपर कैसे टैक्स एप्लीकेबल होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो यस प्रिया जी, अगर और इसके अलावा कोई आपका क्वेरी है रिगार्डिंग द फर्स्ट पार्ट तो यू कैन डिस्कस। आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। यस, No, sir. Thank you so much for your valuable time and valuable information. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। इवन फर्दर इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन राइट इनटू द कमेंट बॉक्स। आप अगर मेरे को मेल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, विल ट्राई टू रिसॉल्व द क्वेरी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सीए संसार टीम फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।